السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 43 سے آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، انشاءاللہ آیت نمبر 55 تک ہم کریں گے۔ اس کی تلاوت سن لیتے ہیں پہلے۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون۔ یہاں سے چلتے ہیں اس کے ترجمے تفسیر کی طرف۔ بنیادی مباحث کیا ہیں؟ وہی ہیں، اہل قریشی مخاطب ہیں اور ان کے جو سوالات ہیں، اشکالات ہیں، اس سے بڑھ کر اب دلائل بھی ہیں، لیکن ایک طرح سے ڈرایا اب جا رہا ہے، انذار ایک طرح سے کیا جا رہا ہے، اور اس کا پہلو تھوڑا بہت نمایاں ہوتا جا رہا ہے یہاں پہ۔ تو پچھلے کچھ سیشنز میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو متقی لوگ ہیں ان کے بارے میں تھوڑا بہت بتایا گیا، ان کی موت کے وقت کے بارے میں تھوڑے سے حالات بتائے گئے، جو اس سے پہلے جو شرک کرنے والے سرکش لوگ تھے ان کے کس طرح سے معاملات ہوتے ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں ہوئی تھیں۔ تو ان کا بنیادی جو اعتراض چلتا ہوا آ رہا تھا وہ یہی تھا کہ آپ اگر ایک رسول ہیں اور آگے آپ نے دعویٰ بھی کر دیا ہے اور یہ کہنا بھی شروع کر دیا ہے کہ جی اللہ کی طرف سے فرشتے آ رہے ہیں آپ کی طرف، اور فرشتے آ کے آپ کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو یہ فرشتے ہم پر نازل کروا دیں، فرشتے ڈائریکٹ ہمارے پاس آ کے پیغام ایک دفعہ دے دیں۔ تو یہ وہ ایک طرح سے بہانے ہوتے ہیں، جب ہم نے بات نہیں ماننی تو کوئی اس طرح کی چیز بس آ کے کہہ دی جائے تاکہ بس وہ پکڑ کے بیٹھ جائیں اور بہانہ مل جائے کہ بس نہیں ہم نے بات نہیں ماننی، تو ایسے ہی، تو بس ایسے ہی ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی اس چیز کا جواب دیا گیا،
कि अगर वाक्यतन ये सवाल है, तो जहाँ आज फिर उससे बात स्टार्ट हो रही है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमसे पहले भी जब कभी रसूल भेजे हैं, आदमी ही भेजे हैं। यानी इंसानों में से ही थे, आदमी ही थे वो, कोई इस तरह की कोई गैर मरी मखलूक नहीं थी। वो ना फरिश्ते थे ना कोई और थे। जब इंसानों के अंदर भेजना है, इंसानों की तरबियत का, हिदायत का बंदोबस्त करना है, तो उन्हीं में से ही लोगों को चूज किया है। तो जो ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी ऐसे ही था। हमने तुमसे पहले भी जब कभी रसूल भेजे हैं, आदमी ही भेजे हैं जिनकी तरफ हम अपने पैगामात वही किया करते थे। अहले जिक्र से पूछ लो अगर तुम लोग खुद नहीं जानते। अब यहाँ मामला था कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब आबाद किया गया था, तो लगभग 2000 साल गुजर चुके हुए थे। फिर कोई पैगंबर नहीं आया था इनकी तरफ। और अब आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल अल्लाह ताला की तरफ से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल हुए थे, इनकी तरफ मबूस किए गए थे। तो बीच में ये 2000 साल का वक्फा था, तो इस वजह से इस चीज की रियायत दी गई कि इनको चलो बता दें कि तुम्हारी जो दूसरी तरफ बनी इसराइल की तरफ तो पैर दर पैर पैगंबर आते रहे हैं, उनको याद दहानी मिलती रही है। उनकी तरफ तो बिल्कुल एक चेन की सूरत में कि एक पैगंबर आ रहा है, अगले की खबर दे रहा है, फिर अगला आ रहा है। और जो आखिरी आए थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उसको तो अभी पास ही में 400-500 साल, 500-100 साल का अरसा गुजरा है। तो तुम्हारी तरफ अगर ये रिवायत नहीं रही कि रसूल आते, और तुम शायद इस चीज से अब थोड़ा सा वो हो चुके हुए हो, गाफिल हो चुके हुए हो, तो तुम्हारे आसपास में ही अंसार हैं, रह रहे हैं, यहूद के भी कबाइल हैं। हजरत खदीजा के भी बारे में बताया जाता है, उनके करीबी रिश्तेदार थे, वर्का बिन नौफल थे। तो वो जानते थे इन चीजों को। तो ये आसपास के लोग हैं, तुम्हें पता ही है। तो तुम उनसे जाके पूछ लो कि ये जो रसूल अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं, तो उनकी, क्या वो इंसान ही होते हैं, क्या इन्हीं लोगों में से ही होते हैं जिन लोगों में वो रह रहे होते हैं? तो तुम्हारे सामने बात खुल के सामने आ जाएगी। तो उसमें कोई इतनी कोई लंबी चौड़ी कोई इल्मी बहसें, हिकमतें और ये करने की जरूरत ही नहीं। सादा सा इस्तदलाल है, पूछ लो जाके। तो यहाँ तक बात हो गई। एक मजीद पहलू जो जो इस आयत का बताना है, यहाँ पे जो है अहले जिक्र क्या की टर्मिनोलॉजी जो यूज की गई है, उससे आजकल के जमाने में एक तरह से तकलीद का पहलू निकाला गया है, और उसके जवाज के लिए ये आयत पेश की जाती है। तकलीद का पहलू ये है कि हमारे यहाँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बहुत जलीलुल कदर उलमा आए, आइम्मा कराम आए, इमाम आए। उन्होंने अपने हिसाब से दीन को समझा, फिर उसमें से चीज़ें वाज़ेह की, और उसमें से एक तरह से शरीयत के पैगामात भी निकाले और सारा कुछ किया। तो जब एक आम इंसान हमारे माशरे में बड़ा होता है, तो वो देखता है कि जी फिरके बने में एक बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, तशी हैं, इस तरह के मतलब काफी सारे ग्रुप हैं। तो अक्सर ये जुमला सुनने को मिलता है कि भाई आप जो भी करें, किसी एक इमाम को ले लें, किसी एक फिरको के ले लें, और उसकी बस तकलीद करना शुरू कर दें, बस उनकी बात मानना शुरू कर दें। तो और साथ उसके जवाब में ये वाली आयत पेश की जाती है। जबकि गौर से बंदा देखे तो ना सियाक उसको सपोर्ट कर रहा है, ना इसमें जो बात की गई है वो कहीं से भी उससे रिलेटेड नहीं है। कि अगर बात समझ नहीं आ रही तो अहले जिक्र से पूछ लो। तो इसमें तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट बात की जा रही है। इसमें तो बात ये की जा रही है कि कुरैश मक्का को अगर ये है कि तो फरिश्ते हमारे पे आ जाएं, या निशानी है, या रसूल इंसान ही होते हैं, तो उनको तो कहा जा रहा है कि अहले जिक्र यानी कि जो नसारा हैं, इन लोगों से, या जो बनी इसराइल वाले हैं, इनसे जाके पूछ लो। अब इसको लाकर यहाँ से यहाँ खड़ा कर देना, तो एक बिल्कुल समझ से बाहर मालूम होता है। लेकिन बहरहाल ये चीज़ है, तो भी समझ लेनी चाहिए।
वजह बुनियादी तौर पे यही है कि जब रसूल होते हैं तो उनके बारे में तो एक तरह से आंखें बंद करके उनकी बात मानी जा सकती है। और उसके पीछे भी हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने एक तरह से हाथ पकड़ा हुआ होता है रसूलों का। उसमें कोई चीज़ ऊपर नीचे भी हो तो अल्लाह ताला की तरफ से फौरी तौर पर करेक्शन और वो चीज़ हो जाती है। एक तरह से अल्लाह ताला लाइव हुकूमत कर रहे होते हैं। उसके बाद बहुत बड़े बड़े जलीलुल कदर आइमा कराम भी आएंगे। वो अपनी तहकीकात भी करेंगे और वो चीज़ें भी करेंगे। हम लोग जो हैं वो सारे लोग एक अगर हक के मुतलाशी हैं तो उनको हक बात, उनको सच्ची बात जहां से भी मिलेगी तो उनको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। वो ये नहीं हो सकता कि उसके बाद कोई एक इंसान रसूल के मकाम पर खड़ा हुआ हो, नाउजुबिल्ला। तो हम लोग अगर अहले तशरीह में कोई बहुत अच्छी बातें हैं, कोई बहुत हक बातें अगर कोई चीज़ हैं तो हमें उनको मान लेना चाहिए। अगर कोई और फिरका बिल्कुल सही बात कर रहा है और बिल्कुल हक बात कर रहा है तो उसको मानने में क्या चीज़ आड़े आ सकती है। तो एक इमाम को मानना और फिर उस अपनी जिंदगी उसकी तकलीद में गुजार देना। तो यहाँ थोड़ा सा बताना जरूरी था कि ये जो आयत जवाज के तौर पे पेश की जाती है वो बुनियादी तौर पे बिल्कुल डिफरेंट पहलू में, डिफरेंट सियाको सबाक में की जा रही है। वेल, आगे चलते हैं। तो अगली आयत है, पिछले रसूलों को भी हमने रोशन निशानियां और किताबें देकर भेजा था। मौजज़ात थे। अब उसकी बहस का यहाँ वक्त नहीं है कि रोशन निशानियां हज़रत मूसा को जिस तरह से दी गई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस तरह से दी गई, हर एक के पीछे क्यों इतनी बड़ी बड़ी हिकमतें थी। उनको ज़रूरत के लिहाज से, उनको हालात के लिहाज से वो चीज़ें दी गई थी। और किताबें, अल्लाह ताला का अपना पैगाम किताबों के सूरत में दिया था। अब ये जिक्र तुम पर नाजिल किया है। अब यानी कुरान और ये जो आयत हम पढ़ रहे हैं, अब ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है। क्यों नाजिल किया गया है? ताकि तुम लोगों के सामने उस तालीम की तशरीह और तौज़ीह करते जाओ जो इनके लिए उतारी गई है, और ताकि लोग खुद भी गौर व फिक्र करें। यहाँ पे भी थोड़ा सा उल्मा का दो मुख्तलिफ राय हो जाती हैं। मैं दोनों को एक तरह से बयान करने की कोशिश कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो अल्फाज बयान हुए हैं लितुबय्यन लिन्नास के, तो उसमें जो मायने यहाँ पे किए गए हैं कि तशरीह तौज़ीह की जाए, यानी कि कुरान पाक जो उतारा जा रहा है तो वो अब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करेंगे। तो वो इसकी तशरीह करेंगे कि कुरान मुश्किल है, आम लोगों के लिए समझना उसके लिए थोड़ा सा हो सकता है। तो उसको जिस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, तो जैसे ही जब हम ये बात करते हैं एक्सप्लेन करने की, तो उसका आप से आप मतलब ये निकलता है कि फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, अहादीस और ये वाली चीजें सामने रख के फिर कुरान पाक को समझा जाएगा। यानी कि फिर कुरान पाक के बारे में ये बात की जा रही है कि उसको समझने के लिए अहादीस को समझना जरूरी है और उसकी रोशनी में की जाएंगी। एक तरफ जो पहलू है उल्मा का वो ये है, और दूसरी तरफ जो उल्मा है उनके बकौल यहाँ जो तर्जुमा किया गया है वो सिर्फ यही है कि जब आपको अल्लाह ताला की तरफ से वही होती है और जब ये आयत उतारी जा रही हैं तो आपको ये दी गई हैं और आपका काम ये है कि इनको लोगों तक पहुंचा दें, इनको लोगों तक बयान कर। यानी उन्होंने तशरीह और तौज़ीह के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने यही कहा है कि जो बिला कमो कास्ट जिस तरह से आपको ये बात बताई जा रही है, आयात नाजिल की जा रही हैं, उनको आप लोगों तक बयान कर दें और यहीं तक बात है। कुरान की आगे जिम्मेदारी है। कुरान और उसकी आयत जो हैं वो इतनी वाज़ेह हैं और इतनी ये सारी चीज़ें हैं कि उसके अंदर फिर अहादीस
के बारे में, जिनमें फिर काफी शकूक व शुबात पैदा हो जाते हैं कि कौन सी बात ठीक है कौन सी बात नहीं है। फिर उसमें हदीस की भी आगे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें फिर उलमा कराम ने उनकी सेहत के बारे में कि वो सही के दर्जे में है, हसन के दर्जे में है, ज़ईफ के दर्जे में है। तो आप शक व शुबे में पड़े बगैर हदीस को एक साइड पे रखकर कुरान को कुरान के तौर पे समझ सकते हैं। और हदीस जब आप समझने लगेंगे तो उसको कुरान की रोशनी में समझेंगे, ना कि हदीस की रोशनी में कुरान को समझेंगे। तो ये मतलब दो तरह की राय हैं। तो हर इंसान अब फिर मजीद अगर इसकी गहराई में जाना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। मेरा काम था कि मैं दोनों तरफ से ये चीज बता दूं। फिर क्या वो लोग जो दावत पैगंबर की मुखालफत में बदतर से बदतर चालें चल रहे हैं, इस बात से बिल्कुल ही बेखौफ हो गए हैं कि अल्लाह उनको जमीन में धंसा दे या ऐसे गोशे में उन पर अजाब ले आए जिधर से उसके आने का उनको वहमो गुमान तक ना हो। अब ये थोड़ा सा रुक के बंदा देखे कि पीछे सिचुएशन चल क्या रही थी, कि जो लोग सरकशी के उस पे मकाम पर आकर खड़े हो गए हुए थे, तो ना सिर्फ ये कि वो खुद मानने से इनकारी थे, बल्कि वो इस पैगाम को ही रोक रहे थे कि वो लोगों तक ही ना पहुंच सके। अब अमूमी रवैया एक सलीमुल फितरत इंसान का, एक नॉर्मल इंसान का क्या होना चाहिए कि आप तक कोई बात पहुंची, किसी ने नबूवत का दावा किया और उसने आके अपनी बात रखी, तो एक थोड़े से वक्त के लिए उसकी बात को समझकर उसकी गलती निकाली जाएगी कि नहीं, ये तुम्हारे यहाँ गलती हो रही है, ये चीज ऐसे नहीं हो सकती। उसके अपने दलाइल होंगे, या कोई चीज समझ नहीं आती तो 10 तरीके से सवाल किया जा सकता है, मजीद हर पहलू पर गौर किया जा सकता है और उसकी हकीकत को सामने खोल कर रखा जा सकता है। लेकिन इंसान उस पर आमादा ना हो, उस पर ना दलील असर कर रही हो, ना वो सोचने समझने के लिए तैयार हो, ना कुछ हो, तो यहाँ तक भी हो तो एक और बात है। लेकिन उससे आगे बढ़कर के मानना भी नहीं है, और आगे बात को पहुंचाने, बाकी लोग जो जो इस चीज के प्यासे हैं उन तक हिदायत पहुंचे, उन तक पहुंचाने के लिए भी रुकावटें खड़ी करना और उसमें चालें चलना, बदतर से बदतर चालें चलना, उसकी तरफ थोड़ा सा खबरदार किया गया यहाँ पर कि क्या वो अब इस चीज से बिल्कुल ही बेखौफ हो गए हैं कि वो जो खालिक है, जो इस पूरी कायनात का मालिक है, वो इनको किसी ऐसे अजाब से ना दो चार कर दे कि उनको जमीन में धंसा दे, या ऐसे गोशे में उन पर अजाब ले आए जिधर से उसके आने का उनको वहमो गुमान तक ना हो। अपने वो रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हों और इधर कोई बरगोबार बादल या कोई इस तरह की तो हवाएं चल जाएं कि वो उड़ा के रख दें सब चीजों को, या कोई ऐसा तूफान आ जाए या कोई और ऐसी मसाइब आ जाए उनके ऊपर जहां पर उनको बिल्कुल गुमान ही ना हो। यानी कि अचानक चलते फिरते उनको पकड़ ले, या ऐसी हालत में उन्हें पकड़े जब उन्हें खुद आने वाली मुसीबत का खटका लगा हुआ हो और वो इससे बचने की फिक्र में चौकन्ने हैं। यानी अब बाज मामलात इस तरह से थे कि जिस तरह से अंबिया की अगर हम वाकयात को पढ़ते हैं तो किस तरह से है कि मोहलत दी जाती है, अल्लाह ताला की तरफ से ढील दी जाती है, लेकिन ढील कब खत्म हो रही है, बाजों का वो सामने नजर आ रहा होता है। हजरत नूह के केस में कश्ती बनना शुरू हो चुकी भी है, लोग देख रहे हैं और उनको साफ पता चलना शुरू हो गया है। ये जहन में खटका तो आता ही होगा ना कि कहीं ये बंदा सच्चा ही ना हो, और अगर सच्चा है तो बस फिर कश्ती बनने की देर है।
یا اگر صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے تو اس کے بارے میں تو کھلی مہلت آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی ہے، جب تک اونٹنی کو کچھ نہیں کہو گے تب تک خیر ہے۔ اونٹنی کو جس دن ہاتھ لگا دیا تو بس پھر مہلت ختم ہو جائے گی۔ تو آپ اپنے ہاتھ میں ہے تو کھٹکا انسانی نفسیات ہے، ان سے اس کے ذہن میں کھٹکا پیدا ہوتا ہوگا کہ پیغمبر آیا ہوا ہے اور ایسی بات کہی گئی ہے اور نشانیاں بھی دیکھ لی گئی ہیں، باتیں بھی وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے، تو اب ذرا سا بھی اونٹنی کو ہاتھ لگایا، سرکش تو ہم ہیں، ہاتھ لگایا اور پھر واقعی عذاب نہ آ جائے، تو یہ اس طرف توجہ دلائیے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہو۔ وہ جو کچھ کرنا بھی چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم ہو اور رحیم ہے، کہ اپنی ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر ہی نہیں سکتے، یہ جتنی مرضی پلان بنا لیں، جتنا مرضی زور لگا لیں، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، اس ڈھیل میں ان کی سرکشی کے باوجود نعمتیں بھی مل رہی ہیں، لیڈری بھی ملی ہوئی ہے، تنگ کرنے بھی دیا جا رہا ہے، ایمان والوں کے اوپر ظلم بھی ڈھائے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نرم خو ہے، رحیم ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس ڈھیل میں ہی کسی موقع پر شاید توجہ ہو جائے، شاید پلٹ آئیں، توبہ کر لیں کہ ابھی راستہ کھلا ہے، توبہ کا راستہ کھلا ہے، ڈھیل چل رہی ہے، تو جتنا اللہ تعالیٰ ڈھیل دے سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ تو وہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت پیچھے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی شفقت ابدی ہے۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے مطلب انسانی نفسیات کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہاں پہ لاجک یا منطق یہاں پہ زیر بحث نہیں ہے۔ اب بات جو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی آزادی کو استعمال کر کے بظاہر اس کی سرتابی تو کر سکتا ہے کہ میرے پاس ارادہ و اختیار ہے، میں مانوں یا نہ مانوں، تو بظاہر تو وہ کر لیتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں وہ سرتابی نہیں کر سکتا، اور اس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم دیکھو ذرا اپنے سایوں کی طرف، کہ ایک اللہ نے قانون بنا دیا کہ اوپر سورج نکلتا ہے، روشنی پڑتی ہے اور تمہارے سائے بنتے ہیں، تو کیا تمہارا کنٹرول ہے اس کے اوپر، اپنے سائے کے اوپر جو ہر وقت زمین پر دائیں اور بائیں سجدہ کرتا رہتا ہے؟ اگر تم اتنے ہی ہو گئے ہو سرکش اور اتنے ہی ہو گئے ہو کہ تم اپنے اللہ کو عاجز کرنے کی بات کر رہے ہو، تو اس معمولی چیز کی طرف توجہ کر لو کہ اللہ نے ایک قانون بنایا ہے کہ یہ جب سورج آئے گا تو سجدہ کرے گا تمہارا سایہ زمین کے اوپر، تو اب جتنی مرضی کوشش کر سکتے ہو تو اٹھا کے اس کو دکھا دو، اور اس طرح سے ایک مطلب طریقے سے توجہ دلا دی کس سائڈ پہ کہ تم چیزوں پر غور کر کے دیکھو۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ انسان اپنے جسم کو دیکھے، اپنے اس کے اندر مطلب ایک ایک چیز کو دیکھے، خلیے کو دیکھ لے، سیل جو بنے ہوئے ہیں انسان اس کو دیکھ لے، وہ سب کے سب اللہ کے قانون کے مطابق چل رہے ہیں، انسان چاہے یا نہ چاہے، جتنا مرضی اکڑ کے چل لے، لیکن اس کا اپنا جسم اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جو قانون اس کے لیے بنا دیا گیا ہے وہی۔ بلکہ اور چیز ایک لحاظ سے دیکھیں، جہاں
दूसरी जगह बयान हुआ है, इंसान चाहे या ना चाहे, हर गुजरते दिन के बाद वो अल्लाह ताला की तरफ जाने में करीब होता जा रहा है, अल्लाह के मजीद करीब होता जा रहा है। हर गुजरता दिन उसकी जिंदगी का कम होता जा रहा है और वो अल्लाह के करीब होता जा रहा है, चाहे इंसान चाहे या ना चाहे। तो क्या इन चीजों के ऊपर गौर नहीं करते? ये चीजें क्या कर रही हैं? ये सब की सब इस तरह इजहार अज्ज कर रही हैं कि हम बिल्कुल आजिज लोग हैं, हम बिल्कुल आजिज मखलूक हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। इंसान बढ़ बढ़ कर बातें तो कर सकता है कि मेरे पास इरादा इख्तियार है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। हकीकत में उसके पास कुछ भी नहीं। जमीन और आसमानों में जिस कदर जानदार मखलूकात हैं और जितने मलाइका हैं, सब अल्लाह के आगे सर्व सजूद हैं। वो हरगिज़ सरकशी नहीं करते अपने रब से, जो उनके ऊपर है, डरते हैं, जो कुछ हुक्म दिया जाता है उसके मुताबिक काम करते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से बताया गया कि इंसान वाहिद मखलूक नहीं है, अल्लाह ताला ने और भी मखलूकात पैदा की हैं, जानदार मखलूकात भी हैं, मलाइका भी हैं, फरिश्ते भी हैं। तो हकीकत में बेशक इरादा इख्तियार दिया गया होगा, लेकिन हकीकत में वो उसके आगे सर्ब सजूद हैं, यानी कि वो अल्लाह के बनाए हुए कानून के आगे झुके हुए हैं और किसी मोह भी उस पे सरताबी नहीं कर सकते और डरते हैं। जो अल्लाह ताला ने रब से, जो उनके ऊपर है, उससे डरते हैं, जो कुछ हुक्म दिया जाता है उसके मुताबिक काम करते हैं। अल्लाह का फरमान है कि दो खुदा न बना लो, खुदा तो बस एक ही है, लिहाजा तुम मुझी से करो। ये दो खुदा से पहलू फिर शिरक का निकला कि शिरक करते थे। और यहाँ पर अब अगर वही जब आलिम बयान कर रहे होते हैं तो वो बता रहे होते हैं कि अगर आप तहलील करके देखें तो शिरक के पीछे हकीकत में क्या होता है? डर। डर होता है, खौफ होता है। यानी वैसे खौफ और डर का होना जात में बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब इंसान आजिज होता है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई मुश्किलात पेश आ जाती हैं, तो कोई इस तरह की बात कर दी जाए कि भाई जिन्नात का असर हो गया है, या उसकी बद्दुआ लगी है, या इसकी ये चीज हो गई हुई है, या ऐसी बातें कर दी जाती हैं, तो इंसान अपने ख्यालात में ही कुछ ऐसी हस्तियां फिर जहन में बना लेता है कि जी फलां फलां के पास चले जाएं, वो कुछ ना कोई हल निकाल देगा, या ये कर रहे हैं। तो उससे, उस डर और खौफ से वो हस्तियां वजूद में आती हैं और फिर इंसान ख्याल ही ख्याल में उन हस्तियों से डरना भी शुरू कर देता है और डर डर में उनको पूजना भी शुरू कर देता है। तो ये शिर्क के पीछे हकीकत में जो चीज है, या उस तसव्वुर में, वो असबाब से मावरा जो हस्तियां हैं उनका तसव्वुर और उनसे फिर डरना है। अल्लाह की तरफ इंसान कब आता है? जब वो इल्म और अकल से काम लेता है, जब वो कायनात को देखता है, अल्लाह की नेमतों को देखता है, अपने मखलूक होने को देखता है, अकली तरीके से हकाइक पर तदब्बुर करता है, गौर व फिक्र करता है। शिर्क उसके बरक्स है, खौफ। तो अल्लाह ताला की तरफ से इस बात को भी क्लियर कर दिया गया। वो क्या है कि अल्लाह से पूछते हो तो अल्लाह क्या कहता है कि शिर्क ना करो, किसी और से ना डरो, दो खुदा ना बना लो, तौहीद पर ईमान रखो। अल्लाह एक ही है, वही, उसी ने तुम्हें पैदा भी किया है, वही तुम्हें रिस्क भी दे रहा है, वही कायनात को चला भी रहा है, वही मालिक भी है, उसी का हुक्म भी चल रहा है। तो अगर तुमने डरना ही है तो तुम उसी से डरो, लिहाजा तुम मुझ ही से डरो। उसी का है वो सब कुछ जो आसमानों में है और जो जमीन में है, और खालिसन उसी का दीन सारी कायनात में चल रहा है।
پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقوی کرو گے؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے ڈرو گے؟ اس پوری کائنات کو، خالق کو سائیڈ پہ رکھ کے کسی جن، کسی ہستی، کسی کتب، کسی ابدال کے آگے جا کے سر جھکاؤ گے؟ تو کسی اور سے تقوی کرو گے؟ تم کو جو بھی نعمت حاصل ہے، تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اس کی طرف دوڑتے ہو۔ اب یہاں بات ہوئی تھی نا کہ شرک باہر سے آتا ہے، انسان کی فطرت میں نہیں ہے وہ چیز۔ شرک باہر سے آتا ہے، اور انسان ڈر میں اس کو قبول کر لیتا ہے، ڈرتے ہوئے خوف میں اس کو پھر ہستیاں بنا کے انہیں پوجنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی نفسیات میں دیکھیں، انسان کے اندر دیکھیں، تو اللہ نے اپنے ہونے کا لاشعوری احساس انسان کے اندر رکھا ہوا ہے۔ جہاں بعد میں ہم نے چیزیں کچھ پڑھی تھیں پہلے، تو اس میں تھا کہ جب کشتی بیچ مجدار میں پھنس جائے، سمندر کی لہروں میں پھنس جائے، تو اس ٹائم جو دل کے اندر سے جو دعا نکلتی ہے، یا دل کے اندر سے جو مدد مانگتا ہے انسان، وہ ان سب معبودوں کو بھول جاتا ہے، وہ اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے گواہی دی ہے کہ تمہارے اندر سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ اللہ ہی سے ڈرنے کا پیغام دیتی ہے، کوئی بھی مشکل وقت ہو۔ تو جب اس حد تک جب بات جاتی ہے تو انسان ڈوبتے وقت پھر اللہ ہی کو یاد کرتا ہے۔ تو جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکا یک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے، کہ گواہی تو تمہیں مل گئی، لیکن پھر مصیبت ٹل گئی، واپسی معمولات پہ آ گئی زندگی، تو پھر بھاگ کے اپنے انہی معبودوں کے پاس، انہی شریکوں کے پاس، انہی کے پاس جا کے پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا، مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ پھر یہ وہ بات ہوتی ہے کہ جب ہر طرح سے واضح ہو گیا، اندر سے بھی واضح ہو گیا، پیغامات سے بھی واضح ہو گیا، علم و عقل سے بھی واضح ہو گیا، پیغمبروں نے بھی بتا دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن نہیں ماننا، نہیں ماننا، تو پھر بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہی جو 2 4 دن کی زندگی ہے، بس اس کو پھر انجوائے کر لو۔ آخر ہونا کیا ہے؟ وہی والی بات کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ انسان اللہ کے قریب تو ہو رہا ہے نا، جانا تو پھر اللہ ہی کی طرف ہے نا۔ موت کا علاج تو نہیں ڈھونڈا نا ابھی تک، مرنا تو ہے، تو مرنا جب ہے تو پھر انسان کو پیش تو اسی خدا کے سامنے ہونا ہے نا۔ تو پھر وہ خدا کو جب آنکھوں سے دیکھو گے، یا اس خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگے، جب حساب کتاب ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ سب کچھ بتا دے گا، پھر تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کیا حقیقت تھی کیا نہیں تھی۔ تو یہ چیز انسان کو، ہمیں بھی، ہر کسی کو مد نظر رکھنی چاہیے۔ مضمون ابھی جاری ہے، لیکن ہم یہاں اختتام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈر اور خوف میں بھی اپنی ہی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے، شرک کے شائبے سے بھی، شرک کی کوسوں دور رکھے ہمیں، آمین۔ یہاں پر ہم اپنے سیشن پہ اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔